Hello everyone, I'm Cecil and this is the first of four stories we'll cover today. In story 1, we'll look at the rally in banking pack. Nifty Bank zoomed to its historic high. In story 2, we'll explore कि सिल्वर के prices अपने record high तक surge क्यों हुए हैं, by what they are driven, and in story 3, we'll examine a drop in Bank of Maharashtra shares because there are reports of potential government stake offload, and in the last and fourth story, we'll analyze the surge in the shares of Wockhardt after US FDA approval its new drug application for antibiotic Zaynich. So let's dive in and know about each news in detail. सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की जो ओपन हुई एट 60,102.05 and touched a record intraday high of 60,114.05 today. ये एक strongest rally है. It's up by 18% year to date in 2025, 15% up over the past 1 year and 4% in the last month and 8% over the last 6 months. अगर हम देखें तो इस रैली के कुछ टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं like Bank of Baroda, which was up by approximately 2%, Kotak Mahindra Bank approximately up by 1%, Punjab National, IDFC First Bank and SBI up by approximately more than 0.5%. कुछ और गेनर्स भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं लाइक द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक compared to Indus IND which was the only loser. It was down by somewhere around 0.3%. अब इसके पीछे के कुछ मेन ड्राइवर्स हैं मैक्रो एंड पॉलिसी ड्राइवर्स. तो सबसे पहले ये जो रैली है इट कम्स अहेड ऑफ आरबीआई दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग जो दिसंबर 3rd to 5th होगी एंड मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग अ 25 बेसिस पॉइंट्स कट ड्यू टू ईजिंग इन्फ्लेशन. ऑल्दो एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हमने देखे अराउंड 8.2% इन Q2 FY26 which may lead to RBI to hold the rate steady. सेकेंड हम बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा की. जैसा कि हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी ने 6 क्वार्टर हाई जीडीपी ग्रोथ को रिकॉर्ड किया है ऑफ 8.2% इन जुलाई टू सितंबर 2025 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 जीडीपी 8% पे है अप फ्रॉम 6.1% अ ईयर एगो. एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस भी अगर हम देखें तो नोमिरा इट कॉल्ड द आरबीआई मीटिंग अ नेल बाइटर. HSBC एक्सपेक्ट कर रहा है रेट कट एज द ग्रोथ मॉडरेट्स बाय मार्च 2026 एंड CLSA sees a 60% chance of 25 basis point cut down from 80% earlier. एक ब्रॉडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो इक्विटी बेंचमार्क्स भी अपने न्यू हाइस पर थे. सेंसेक्स एट 86,159.02, निफ्टी 50 एट 26,325.8 एंड निफ्टी मिड कैप 100 एट 61,308.7. निफ्टी बैंक रैली रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल मोमेंटम व्हिच इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द मैक्रोइकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन ऑफ आरबीआई ईजिंग एंड इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म इन बोथ PSUs and private banks. And now let's move to our second story where we can see कि silver futures in India surge किया अपने record high पर which is 1.78 lakh per kilogram which is a new all time high. और ये सब कुछ हुआ है आफ्टर अ वीकर यूएस डॉलर एंड इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन की एक इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है बाय द फेडरल रिजर्व. मेन ड्राइवर्स इस रैली के फिर से कुछ मैक्रो फैक्टर्स हैं जैसे कि यूएस डॉलर that fell against the major currencies making silver more attractive for Indian investors. Also there is a hope for Fed rate cut जिसकी वजह से एक added momentum देखने को मिला है as lower global rates reduce the opportunity cost of holding precious metals. Second है market sentiment. तो अगर market sentiment की अगर हम बात करें तो investors increasingly silver को देख रहे हैं as a safe haven asset because there is a lot of global uncertainty. और ये जो surge है it is also partly fueled by the speculative positions in the future market. अगर हम ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स की बात करें तो सिल्वर रैली कर रहा है ग्लोबली रिफ्लेक्टिंग ऑप्टिमिज्म दैट मॉनेटरी ईजिंग कुड सपोर्ट कमोडिटीज. ये जो ट्रेंड है ये काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है with gold, though silver often shows higher volatility. Implications की बात करें तो एक strong silver price हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से we can clearly see a growing investor interest in commodities as hedges and for traders इस टाइप की रैली ट्रिगर कर सकती है एक short term profit booking while long term investors के लिए they see it as a store of value. इंडस्ट्रियल डिमांड की अगर हम बात करें तो वो अभी भी इंटैक्ट है बट स्पेक्युलेटिव बाइंग इज ड्राइविंग करंट लेवल्स.
जो रिकॉर्ड हाइज हमने देखा वो ऑब्वियसली दिखाते हैं कि देयर इज अ सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर प्राइसेस टू मैक्रो इकोनॉमिक क्यूज, जो हमने देखा कि करेंसी मूवमेंट्स, फेड पॉलिसी, इन सब की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी इन द प्राइसेस ऑफ सिल्वर। एंड अगर ये ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग कंटिन्यू होती है, सिल्वर कुड सस्टेन न्यू हाई लेवल्स व्हाइल एनी अनएक्सपेक्टेड रेट हाइक कुड क्रिएट शार्प करेक्शंस एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टोरी, जहां पर वी कैन सी कि शेयर्स जो हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, वो अराउंड फॉल किए मोर देन 1% आफ्टर द रिपोर्ट सरफेस की गवर्नमेंट ऑफलोड कर सकती है 5% स्टेक इन द बैंक। अगर हम देखें तो कुछ रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं इसके पीछे। तो गवर्नमेंट अभी एम कर रही है कि अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करे बैंक्स में, एंड सेबी के नॉर्म्स को मीटअप करने के लिए, विच रिक्वायर्स कि 25% पब्लिक फ्लोट होना चाहिए लिस्टेड कंपनीज में। करंटली गवर्नमेंट होल्ड करती है अराउंड 79 to 80% स्टेक, एंड स्टेक सेल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रिड्यूस कर देगा उसका स्टेक टू 75%। मार्केट सेंटिमेंट की बात करें इस न्यूज के बाद, तो इन्वेस्टर्स ने काफी कॉशियसली रिएक्ट किया है टू द पोटेंशियल डाइल्यूशन, बिकॉज सेलिंग बाय गवर्नमेंट कैन टेम्पररीली वे ऑन द शेयर प्राइसेस। शॉर्ट टर्म सेलिंग दिखा रही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द टाइमिंग एंड स्केल ऑफ द स्टेक ऑफलोड। और अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ये जो स्टेक सेल है, ये एक पार्ट है ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का टू इंप्रूव द लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द पीएसयू बैंक्स। एक fresh capital raised from the stake offload or the QIP could strengthen the bank's capital adequacy, supporting future lending and growth. इसके हम कुछ implications देखें तो नियर टर्म में जो शेयर प्राइस है, इट मे फेस प्रेशर ड्यू टू सेलिंग एंटिसिपेशन, बट लॉन्ग टर्म में एक हायर पब्लिक फ्लोट और कैपिटल इन्फ्यूजन बेनिफिट कर सकती है बैंक की स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। बट करेंटली ये डिप हाईलाइट करिए कि कैसे रेगुलेटरी ड्रिवन स्टेक सेल्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को, even as the structural improvements and the capital infusion position the bank for a stronger fundamental in the future. And now in our fourth and last news for today, we have the news about the shares of Wockhardt जो नियरली जंप करे 20% तक आफ्टर उसकी एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन को यूएस एफडीए अप्रूवल मिला, विच सिग्नल्स अ मेजर रेगुलेटरी माइलस्टोन। अब इसके पीछे मेजर यही रीजन था कि एफडीए एक्सेप्टेंस हो गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का जो रिस्क था वो एक तरीके से डी रिस्क हो गया, जिसकी वजह से वॉकहार्ट अब यूएस मार्केट में एंट्री कर सकती है विद देयर एंटीबायोटिक ज़ैनिच। रेगुलेटरी क्लैरिटी की वजह से एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी, स्पेशली जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ड्रग्स होती हैं उसमें। अगर हम इसमें मार्केट सेंटीमेंट देखें तो इस न्यूज की वजह से ट्रिगर हुई है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक, एंड इन्वेस्टर्स सी दिस एज अ वैलिडेशन फॉर कंपनीज आर&डी पाइपलाइन एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूएस अभी भी एक लार्जेस्ट मार्केट है फॉर एंटीबायोटिक्स, और ऐसी जगह पे एफडीए अप्रूवल होना दिखाता है कि कितना ज्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल अभी कंपनी कर सकती है इस ड्रग के थ्रू। Also, company has been investing in expanding its regulated market presence, and this approval adds momentum to that strategy. ये stock is likely to see continued upside interest in the near term as milestones move closer to the commercialization, but ये approval enhance भी करेगा company की long term visibility for the pharma investors. So that was all for today's episode of Daily Market Rundown. इस वीडियो में हमने कवर करी है न्यूज अबाउट द बैंकिंग रैली, जो दिखाता है एक renewed strength बैंक्स के फाइनेंशियल्स और इंप्रूव्ड इन्वेस्टर एपेटाइट इन बैंक्स। एक शार्प रैली देखने को मिली हमें सिल्वर में भी, जो दिखा रहा है कि देयर इज अ राइजिंग हेजिंग एंड सेफ हेवन डिमांड, पॉसिबली सिग्नलिंग मैक्रो अनसर्टेनिटी। देन वी कवर्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसके शेयर्स फॉल हुए बिकॉज ऑफ द स्टेक सेल न्यूज बाय द गवर्नमेंट, एंड लास्टली वॉकहार्ट शेयर्स जो कि अराउंड 20% तक ग्रो की हैं because the company got US FDA approval. So that was all for today's edition of Daily Market Rundown. Tell me which of these do you think will matter most over the next 3 to 6 months, and let me know your thoughts in the comments below. Also, if you like the video, do like, share, follow.